Good morning, guys. Today we have to discuss a new chapter or a new chapter on fifth semester mechanical engineering. The name of subject is the dynamics of machinery, and this is the first chapter where we have to discuss about the dynamic forces analysis of mechanism. Okay, so this is your syllabus as per the GTU guideline. First one, we have to discuss about the introduction, a Lambert principle, equivalent offset inertia force, then dynamic analysis of force link mechanism, then dynamic analysis of slider crank mechanism, velocity and acceleration of piston, angular velocity and angular acceleration of connecting rod, engine force analysis, dynamically equivalent system, inertia of the connecting rod, and the inertia force in a reciprocating engine. Okay, so what is the dynamics of machine? When, if just take one example, okay, let's take a piston cylinder arrangement where in the cylinder the piston are moving to and fro motion, and that can be converted into rotary motion at the wheel section. This is the motion. When we are consider the force that can produce this motion, then this part is known as dynamics of machine. That means when it means that it deals with interaction of force and motion. Okay, so at that time, one word is come to our mind, uh, come to our mind, how this force or this motion can be produced. So at that time, an inertia force create produced there means comes in the picture, and this inertia force is nothing but it is the force that can be produced due to mass. Okay, due to the mass which produce uh, their acceleration. Okay, so let's take one example. Just put one card uh, in the glass. After that, you have to put one point here. When you just suddenly take out this card, the coin takes some acceleration, and just they are sitting at the bottom of the glass. So this acceleration which is produced by this mass is called inertia. Okay, what is called? It is called inertia. Okay, so when these inertia force are small and these inertia force are small and hence negligible as compared to other forces, then the analysis is called static force analysis. Means the analysis where only motions are considered but not the forces that can produce this motion is called static force analysis. Similarly, when we are consider the effect of inertia on the component, then it will be considered as dynamic force analysis. Means the when we are consider the force as well as motion of the machining element, then the analysis is called dynamic force analysis. Okay, these are some basic definition that always remember in your mind. What is the rigid body? So a rigid body is a body which does not predict any shape, or it cannot be predicted in deformation while transferring the motion of forces. Means, let's start one example. We are just place uh, air in the football. In that portion, if we are just cut out this part, means we have to just pull this part, then the shape of the that football should be
this type of flow. Okay, and this is called rigid body. Similarly, in that case, if these bodies are restricted to the forces that can blow in, or say that can means forcefully filling the air, then the opposite force that can restrict this force to change their position, again it is called inertia. And the main motto of this inertia is to maintain the equilibrium position. Remember, the inertia is a force that can always try to maintain their equilibrium position. And equilibrium position is means what? Where no mechanical forces are acting on them. Okay, remember that. Then third one is the inertia force. And inertia force is an imaginary force which when act on the rigid body bring it is in equilibrium position. We are already discussed this. So what is the inertia force? The inertia force is the same in magnitude but opposite in direction of accelerating force. So accelerating force according to second law of motion m into a, but we are saying it is in opposite direction. That's why we are using minus m into a. Okay, this minus m into a, and always we are remember m is the mass of the rigid body, which is in kg, and a is the acceleration due to gravity, which is where the unit is meter per second square. Again, what is the torque? So, before discuss about the torque, we have to just remember the point when some force is applied on the body and the body is moving in a straight line, then we are saying it is the forces. But if the body move in the trajectory part, means with some angle, then we are say it is the torque. Okay, so the inertia torque is an imaginary torque where one applied on the rigid body bring it in the equilibrium. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैंने ये कहा कि फोर्स क्या होता है। तो अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, देन वी आर से दिस इज द मोशन। ओके, लेकिन अगर ये जो बॉडी है वो एक एंगल पे इंक्लाइन हुई है, मतलब आर्क में हुई है, तो इसकी वजह से मतलब ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलेंगे टॉर्क। याद रहेगा, लीनियर मोशन के लिए टॉर्क और एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क, सॉरी लीनियर मोशन के लिए फोर्स एंड एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क को यूज करें। ओके, चलिए टॉर्क के लिए भी सेम रूल्स होगा। तो इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू टी आई, which is equal to accelerating torque, but opposite in nature. That means minus I into alpha. Here I is the mass moment of inertia of the rigid body, and alpha is the angular acceleration. Okay. Then what is the mass moment of inertia? So mass moment of inertia is nothing but it is the multiplier of the mass of a body to the square of its perpendicular distance from the reference. मतलब क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि एक रेफरेंस लाइन लिए, इस रेफरेंस लाइन की कुछ दूरी पे मैंने एक रिजिड बॉडी रख दिया। रिजिड बॉडी मतलब क्या हुआ, तो जस्ट एक इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर रख दिया। अब स्टेटमेंट दिया गया है कि सिलेंडर जो है वो एन नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका जो मास होगा वो m1 m2 सो ऑन टू mm होगा, जो k1 k2 k3 टू सो ऑन ऑफ k एंड डिस्टेंस पे होगा। तो जब इन सबका मैं समेशन करूँगा, मतलब summation of product of mass and the square of perpendicular distance from the reference line, then is called moment mass of inertia। ये आपको याद रखना है। अब मोमेंट मास ऑफ इनर्शिया पे यहाँ पे जो हमने के लिखा है,
which is called the distance between that point to the reference line. It is also called the radius of gyration. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है उससे रेडियस ऑफ gyration भी बोलते हैं। और कुछ टाइम पे इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। Means if the body mass of the if the total mass of the body is assumed to be concentrated at one point, then it is known as center of mass or center of gravity at the distance k from the reference axis. ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ये है कि जैसे एक एग्जांपल हो, आप एक अपने कलीग से लड़ाई कर रहे हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर उसके पेट में मारते हो तो वो क्या करता है, झुक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी बॉडी मतलब इसी पर्सन आपके कलीग को अगर आप एक झापड़ मारते हो तो वो गिर जाता है। आपको मुझे रीज़न बताना है कि जब हमने उसके पेट में मारा तो वो झुका क्यों, और जब मैंने उसको एक झापा मारा तो वो गिरा। सोचिएगा और आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद आया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ने एक स्टेटमेंट दी है कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टुगेदर विद इनर्शिया फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी पे कोई एक नोन क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिससे मैंने इसको एफ बोला। अब इनर्शिया फोर्स क्या है, तो इनर्शिया फोर्स इसका इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है जो उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि डी एल्बर्ट प्रिंसिपल ने स्टेटमेंट ये दिया कि अगर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आई होता है, दैट मीन्स मतलब क्या हुआ इसका, तो F प्लस एफ आई जो होगा वो क्या होगा, तो वो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये गलत वर्ड है ना, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, तो दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा ये माइनस होगा। तो एफ माइनस एफ आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब बॉडी जहाँ की तहाँ एज इट इज खड़ी है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उसने दो एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल क्या लिया, तो उसने बोला कि अगर मेरी एक बॉडी है, चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जैसे कि एग्जांपल हो, ये एक बॉडी है। अब ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैं जिसे जी बोलूँगा, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया और ये फोर्स इसकी सीधी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा है। यहाँ एक फोर्स लगाया जिसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, और यहाँ एक फोर्स लगाया जो भी उतने ही हुआ। ये हुआ F1, ये हुआ F2 और ये हुआ F3। ये तीनों अंदर की ओर इसको ढकेल रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो मैंने बोला Fr होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एफ आर, जितना फोर्स लग रहा है उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगेगा जो उसको मतलब इक्विवेलेंट बताएगा। तो इक्विवेलेंट बताने के लिए उसने क्या किया, तो ये देखो उसने कुछ नॉमेनक्लेचर्स कंसिडर किए। नॉमेनक्लेचर्स कैसा है, तो देखो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो एम इंटू ए लग रहा है। अब उसने क्या किया, तो एफ माइनस एम ए, मतलब ये जो टर्म है इसको उठा के इसका फिर आया, तो माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो है वो रिएक्शन फोर्स है, जो हमने अभी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि ये जो है, हाँ वो हमारा रिएक्शन फोर्स है। और वो जो अपोजिट वाला फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, तो वो एक्चुअली ये यहाँ पे लगना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, एफ आर माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, और एफ आर माइनस ये एक्चुअली क्या हुआ, तो इट इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट इनर्शिया विच इज इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारा
डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अपने आप को जस्टिफाई कर लिया। ठीक है, ये देखिए, that means if we apply inertia force F5 of magnitude m into a in the opposite direction of the resulting force Fr, then the body remains in equilibrium position, which is called D'Alembert's principle. चलिए, अब जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें जो बॉडी है उसके सेंटर पे वो नहीं लगेगा, तो हमने क्या किया, ये एक बॉडी लिया जिसके ये कुछ ये बॉडी हो गया, मैंने इसको x मान लिया जो सेंटर से h डिस्टेंस पे है। ठीक है, वही सेम रूल्स F1 F2 F3, और ये का जो रिजल्टेंट है वो समथिंग यहाँ पे मिलेगा, या आप ऐसा भी ले सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तब उसने क्या बोला, ये देखिए, तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क होगा आई इंटू अल्फा, सेम रूल्स आई आर माइनस आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और से आई आर मतलब टॉर्क प्रोड्यूस बाय दैट मतलब रिजल्टेंट टॉर्क प्लस प्लस torque produced by that inertia force, मतलब inertia torque is equal to zero. That means we will apply inertia torque of magnitude alpha into I in the opposite direction is the resultant torque Tr, then the body remains in equilibrium position. Okay. चलो, अब इसके बाद आता है टॉपिक इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स के लिए उसने एक वर्ड यूज किया है, कपल। अब कपल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं एक बीम लूँ और ये बीम के यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करूँ और सेम क्वांटिटी का फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये टाइप के सिस्टम को हम लोग कपल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कपल से थोड़े से बेसिक डायग्राम से याद रखना। देखो, ये आपको हमेशा न्यूमेरिकल में काम होता है। ठीक है, तो टॉर्क की क्या होता है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो सी है, एक्चुअली ये सी क्या है वो मैं आगे आपको, तो इसने क्या बोला है कि जब भी कोई बॉडी पे हम मोशन अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी ये दो तरह के फोर्स लगते हैं। पहला है एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है इनर्शिया फोर्स, और इससे ही बोला जाता है कि देन अ कपल आल्सो एक्ट ऑन द बॉडी, जब ये कपल की तरह एक्ट करने लगे। In graphical method of solution, we can replace inertia force and inertia couple by an equivalent offset inertia force. मतलब inertia force और inertia couple को हम लोग क्या मानते हैं, तो equivalent offset inertia force मानते हैं। This force account for inertia force in couple also. For this purpose, the line of action of inertia force is displaced from the center of the mass. अब इस चीज़ को कैसे वो समझाना चाह रहा है, तो मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया एफ जिसकी वैल्यू थी एम इंटू ए। अब इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब ये टॉर्क लग रहा है तो एट द सेम टाइम जितनी क्वांटिटी में आपने फोर्स लगाया था उतनी ही क्वांटिटी में इनर्शिया भी लगने लगे विथ एच डिस्टेंस पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये रोटरी मोशन में आ जाएगा। अब रोटरी मोशन में आएगा तो अल्टीमेटली ये आपने जितना फोर्स अप्लाई किया है उतनी ही क्वांटिटी का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए उसने बोला कि एफ आई इज इक्वल टू सी आई। एक्चुअली सी आई मतलब एक कांस्टेंट टर्म के लिए बता रहा हूँ। चलिए, तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क होगा एफ आई इंटू एच इज इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब इसके बेसिस पे एच की वैल्यू निकालेंगे तो मेरी एच की क्या आ जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो एम के स्क्वायर इंटू अल्फा अपन एम इंटू ए। अब एम से अगर मैं एम काट दूँ तो मुझे वो हाइट पता चल जाएगी जहाँ पर वो कपल लग रहा है। ठीक है, चलिए, अब आता है फ्री बॉडी डायग्राम का आता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेटमेंट में दिया गया है कि जब अगर हमें कोई एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करते के लिए आपको उस पर्टिकुलर
जगह पे जाके और फिर वो एनालिसिस करना है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया कि मान लो आपके पास ट्रेन, मतलब आपको ट्रेन सिस्टम का एनालिसिस करना है, मतलब ट्रेन्स की जो व्हील्स हैं वो व्हील्स का आपको अगर एनालिसिस करना है तो आप वहाँ पे जाओगे और फिर एनालिसिस करोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे इस फ्री बॉडी डायग्राम का सिस्टम बनाओगे और यहाँ जो फोर्सेस अप्लाई करोगे वो फोर्सेस उतने ही लगेंगे और और जो रिजल्टेंट आएगा वो उस एक्चुअल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, तो जनरली फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस डायग्राम में हमेशा सिस्टम जो है वो अपना इक्विवेलेंसी मेंटेन करती है। देखो क्या लिखा है, इफ द गिवन मैकेनिज्म इज इन इक्विलिब्रियम देन ईच ऑफ द लिंक इज आल्सो इक्विलिब्रियम, hence it is possible to assume any link of the mechanism to be in equilibrium under the various action of various forces. A free body diagram is the diagram of a link isolated from the mechanism, showing all the active and reactive forces acting on the link to determine the magnitude and the nature of force acting on the link. In free body diagram, the force exerted by member I on member J is represented by I force Ij। याद रखना, I से जो J के ऊपर लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे Fij। Similarly, the force exerted by member J on member I is denoted by Fji. That means both forces are same in magnitude but opposite in direction. बस ये बात आप याद रखिएगा, ये एफ आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ जे। चलो इसमें दूसरे दूसरे एग्जांपल्स दे के आप समझाने की कोशिश किया गया है। अगर मैंने इसका नाम दे दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप देखें मैं इस डी वाले को बाहर लेके आता हूँ, तो डी वाले को बाहर लेके आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। अब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, तो याद रखना फोर्स से हम 1 में जा रहे हैं, इसलिए ये लिखा फोर्स फ्रॉम 1 to 4। अब इसी तरीके से यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या है, देखो 3 से कहाँ जा रहा है, 4 के लिए, तो इसलिए हमारा फोर्स आया फोर्स फ्रॉम 3 to 4। ठीक, अब जैसे 3 to 4 की हो जाएगा तो इसका अपोजिट फोर्स इस बीम पे भी लगेगा, मतलब अगर ये फोर्स यहाँ लगा तो इसका अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, तो अपोजिट फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा 4 से 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कौन होगा, ये फोर्स आया 2 से 3 में, इसलिए मैंने नाम इसका दिया 2 to 3। ठीक है, आगे फोर्स का नाम क्या हुआ, 4 to 3, और ये वाले का नाम हुआ फोर्स 3 to 4। चलिए अब ये यहाँ पे लग रहा है, तो जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पे लग रहा होगा, तो वो फोर्स का नाम क्या हुआ, फोर्स 3 to 2। अब सिमिलरली यहाँ से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्या होगा, F1 to 2। अब अगर F1 to 2 यहाँ लग रहा है तो इसका अपोजिट वाला कितना होगा, तो F3 to 2, क्योंकि अपन ने पहले वो लिख लिया इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके यहाँ पे चल। तो ये आपके जो हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। देखो दूसरा बताया, दूसरा कैसे, इस वाले को उठा के ऊपर लेके गया, इस वाले को उठा के इधर लेके गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक फोर्स एक्सर्ट किया, तो फोर्स का नाम क्या होगा, ये देखो। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, देखो अगर मैंने ये फोर्स को यहाँ पे एज्यूम किया है और मैं आगे जाता हूँ और मेरा आंसर पॉजिटिव में आता है, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि मेरा जो एजम्पशन है वो सही है। लेकिन अगर मान लो मेरा आंसर अगर निगेटिव में आता है, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे कि माय एजम्पशन शुड बी रॉन्ग, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद आया था स्टैटिक फोर्स एनालिसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। तो 4 बार मैकेनिज्म के एनालिसिस करने के लिए आपके पास दो टाइप्स के केसेस होते हैं। फर्स्ट है वन नॉन फोर्सेस और दूसरा है 2 नॉन फोर्सेस। अब 1 नॉन फोर्सेस को
पूरा का पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको डायग्राम के साथ विथ एग्जांपल समझाया था। आप उस वीडियो को देखिए और वीडियो से उस चीज़ को सीखें। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।